લાભ પાંચમ જ હોય ને, પછી લાભ पंचमी शुरू होगी, लाभ ही लाभ है, क्योंकि देवता मेरे साथ रहते हैं। महादेव ने देखा तो सती का तप अघोर तप था। इतना कठिन तप देखकर महादेव के मन में हुआ अभी ये दर्शन दे दो, जो मांगे सब कुछ। लेकिन नहीं नहीं, थोड़ी तो परीक्षा करनी पड़ेगी। भक्त बिना थे प्रथम पीड़ाना अनगढ़ संकट देने पड़ेगा। जितने जितने भक्त कोटि में महापुरुष हुए उसके जीवन को देखे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं है? पर जलाराम बापा का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था है? और झुपड़े में जो क्रांति हो सकती है ना, कभी कभी राजमहल में नहीं हो सकती। जलाराम बापा का जीवन चरित्र पढ़ने जैसा है, आपको जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाला है। मुझे तो पूरा जलाराम बापा का चरित्र कंठस्थ है, एक एक दृष्टांत, एक एक दृष्टांत। एक बार जलाराम मंदिर मुझे कथा करने का अवसर मिला था, तो मैंने पूरा चरित्र प्रागट्य से लेकर रथ में बैठकर जहां रहे थे और सामने लालियो में लोग, बापा क्या तो के स्वर्ग में जाओ आવું તારે તો કે પધરામણી ક્યાંક જાતા હશો। અને પછી લાલિયો આશ્રમ માં આવે છે અને સૌને જોવે છે, કેવા લાગે છે કે મને સુંદર રથમાં બેસીને સામા મળ્યા, તો ના ના એ તો જતા રહ્યા છે। અરે મને કહ્યું સ્વર્ગ માં આવું છે ભગવાન વિષ્ણુ દર્શન કરવા, હું ગયો નહીં ભલો। સુંદર ચરિત્ર છે, એક એક પ્રસંગ આંખ ભીની કરી દે। એટલે જલારામ બાપાએ 30 વર્ષની ઉંમરે વીરબાઈનું દાન કર્યું। તો જલારામ બાપાની ઉંમર 30 ની હોય તો વીરબાઈ તો 25 ની આસપાસની હોય ને। યુવાન પત્નીને કોઈના હાથમાં દાનમાં આપી દેવી કે નાની વાત છે? પછી ગામનો ઠાકોર ઠપકો દેવા આવે છે, જલારામ અન્નનું દાન કરી શકાય, ભૂમિનું દાન કરી શકાય, સૂરનું દાન કરી શકાય, પત્નીનું દાન કરી શકાય। જલારામ બાપાએ એટલું જ કીધું, ઠાકોર સાહેબ રાજ્ય ચલાવવું એ તમારો વિષય છે, આમાં તમને ખબર ના પડે। ઠાકોર મૌન થઈ જાય, આમાં તમને ખબર ના પડે। ઠાકોરને ખબર પડે કે જલારામ શું કહેવા માંગે છે। જલારામ એ કહેવા માંગે છે કે વિશ્વનો રચિતા હોય ને તો જ આ વીરબાઈનો હાથ માંગી શકે, બાકી કોઈની તાકાત નથી કે વીરબાઈની માંગણી કરી શકે। એ જલારામ ભક્ત બિનાતે પ્રથમ પીડા મોરદર્જ રાજા માથે કરવત મિલાવી। કેવા કેવા ચરિત્રો, સત્યવાદી રાજા હરિચંદ્ર, ક્યાં ક્યાં કષ્ટ, ક્યાં રોહિત। હવે તો આખ્યાનો ઓછા થાય છે, પહેલા તો આખ્યાનો થતા સ્પેશિયલ, એમને એમના પર આમ વક્તાઓ બોલતા હતા। પૂજ્ય બાપુ બહુ બોલ્યા છે, મોરારી બાપુ પહેલી જૂની કથામાં, કાળી દાઢી વાળી કથા જયારે હતી ને એમાં તમને સાંભળવા મળ્યું, આમ એટલો આમ જનના માણસને ઉભો કરી દે। અને પછી તો સ્થિરતા અને ગંભીરતા આવે ને, સવાલ નથી ને। હું આજ મારી કથા સાંભળતો હતો, કેટલી જૂની, મને તો હું આવું બોલતો છું, હું આવું બોલતો એમાં એવું હું કહેતો હતો, વગર ચોમાસે વરસાદ પડવા લાગે તો સમજી લેવું એ સાસુમાં છે। આવું બોલતો સાસુ એટલું બોલે એટલું બોલે એટલું બોલે, પણ પુત્ર વધુ તેમની સામે એક શબ્દ ન બોલે, એક શબ્દ ન બોલે, સહન કરતી રહી, મૌન થી સહન કરતી રહી। અને એક દિવસ એવા આવે કે સાસુ પોતાના મહેમાનોને કહેવા લાગે કે એના બાપને એના મા બાપના સંસ્કાર લઈને આવી છે, હું કેટલું તેની સામે બોલું પણ મારી પુત્ર વધુ કદી હું ન કરે। આવું બોલતો કદી હું ન કરે। આવી કથા મારી કથા મેં સાંભળી, બોલું મેં કીધું આવી કથા કરું તો હું ન કરે, મારી સામે કભી હું ન કરે। અમારી કાઠીવાડી છે ને ભાઈ, હું નહીં કરતો હોય કે આવી કથા હું કહેતો, બોલો કેવી મજા કરી છે રામ જાણે। હવે તો આ બધું ખબર નહીં, ગુજરાતી મારી બગાડ નાખી હિન્દી ભાષાએ। भगवान महादेव ने साधु का वेश लिया, भिक्षान दे। सती ने देखा, अरे साधु भिक्षा लेवा माटे, धन्य में साधु संगति। मन ही मन सती प्रसन्न हुई और मन में एक सुंदर किरण प्रकट हुआ, कब मुझे महादेव मिलेंगे। फल देने के लिए जा रही, लो महात्मा जी स्वीकार। वृद्ध महात्मा ने कहा, आप कौन हैं? दक्ष महाराज की पुत्री, मेरा नाम सती, महादेव का आराधन कर रहे हो, मुझे महादेव को मिलना है। मिलकर क्या करोगी? जन्म कोटि लगी रगर मारी, बंधु शंभु न रहो कुमारी। मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि जीवन पर्यंत कुमारी रह सकूं, लेकिन विवाह करो तो महादेव के साथ ही करूंगी, उसको मुझे मिलना है। और साधु वेश में स्वयं शिव महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा जी, अब क्यों महादेव की निंदा कर रहे हो? न केवलम भवेत पापम, महादेव की जो निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन सुनने वाला तो महापापी है। कब निंदा करेंगे? कोई सुनने वाला मिलेगा तो निंदा करोगे, ना कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो निंदा कौन करेंगे? इसीलिए निंदा जो कर रहा है
वो पापी है, सुनने वाला महापापी। इसलिए हम सबको निर्णय लेना है, किसी के लिए कुछ छिद्र नहीं खोलना है, कभी नहीं। और कोई छिद्र खोल रहा है तो उसको कहे भाई पगे लागू तने एक श्रीफल बधेरू मैं दीवा तने करूं पर तू मुंह गोरे, कभी नहीं। सती ने कहा न केवलम भवेत् पापम निंदा कर्तु शिवस्य यो वे शृणोति तनिंदा पापभक्ष भवेद्यः। सुनने वाला महापापी, इसलिए आज से पापभक्ष भवेद्यः। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है, हम देव कोई महादेव कोई साधु संत महापुरुष कोई ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करेंगे। जो सज्जनों की, ब्राह्मणों की, भगवान के भक्तों की, विद्वानों की जो निंदा करते हैं उसको रोग शोक दरिद्रता निर्धनता और बहुत सारी दुखरूप घटना इसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कभी नहीं कोई करता है तभी उससे दूर रहे, कभी नहीं। संग करो तो सत्संग नो संग करो, निंदा करना मानसों नो संग नहीं। जिनको दूसरे के छिद्र खोलने की आदत है, दूसरों के छिद्र देखने की आदत है, ऐसे जीवात्माओं को साथ कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कभी नहीं, बस जीवन में संग दोष न हो सके। आज के माता पिता, आपके माता पिता कितने दुखी हैं अपने बच्चों से। अब यूनी में जा रहा है, इसलिए अंदर से फर्क है। यूनी में जा रहा है, यूनी में जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यूनी में नहीं भेजना है तो ठंडे में भेजो। कितना डर है, क्यों डर है? क्योंकि संग दोष होने वाला है। संग तू करो तो तुम्हें ये नहीं गाओ ना तुम भला माम करो मैंने मने गाई। सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? और शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत कट्टरता दिखाई है। महादेव के बारे में कोई भली बुरी बात कर रहा है, आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा काट लीजिए, ऐसा भी कहा है। और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से दूर चले जाओ। और महादेव की जो निंदा करते हैं उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए, उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में कही है। इसलिए हम सबको दृढ़ संकल्प करना है, हम देव और महादेव की, साधु संत ब्राह्मणों की, विद्वानों की, सत्कर्मियों के, सज्जनों की, भगवान के भक्तों की कभी निंदा नहीं करें। और सुखी होना है तो शत्रुओं की भी कभी निंदा नहीं करेंगे, दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करेंगे। निंदा उसको कहते हैं किसी की अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना। क्या मानसो उल्ली उल्ली खोलता है का जने काशी में PhD થયા હોય એવા ઉલ્લી ઉલ્લી નિંદા કરતા હોય, પછી કુકરને પેલે બે સીટી વધારે વાગી જાય, એનો વાંધો નથી, પણ હા સાંભળી લો પહેલા, એ ક્યાં સાંભળી લો પહેલા। ઘણા લોકો પૂજા કરતા હોય, સાધના કરતા હોય, ઉપાસના કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, દાન કરતા હોય, પછી બેઠો બેઠો આખા ગામને કરતો હોય, બધું પાણી ફેરવી દે। सती ने अपने नेत्र बंद कर दिया, सती ने अपने कान बंद कर दिए, सती ने अपना मुख बंद कर दिया, क्योंकि सुनना नहीं मुझे, शिव निंदा का मुझे मुख नहीं देखना है। इस सती ने कान आंख और मुख बंद कर। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई। मन मंदिर में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ कि मेरे सामने जो मेरे साथ वाद विवाद कर रहे हैं ये कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी है, वो तो कैलाशी है, स्वयं शिव है। जगदीश और जगत को जानना है तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुख नहीं। दूरदर्शन से नहीं, अंतरदर्शन से मिलता है। इसलिए कभी कभी अकेले रहना सीखो। बहुत लोग अकेले रह नहीं सकते। अकेले में जो आनंद होता है ना, ऐसा कहीं नहीं भी आनंद होता है। एकांत में रहे, अकेले रहे। कभी कभी कोई वृक्ष के नीचे बैसे, कभी कोई पुष्पों को देखें, कभी बहता हुआ जल को देखिए, कभी सागर के तट पर, कभी घनघोर अंधेरी रात हो तो आकाश में सुंदर तारे आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं। सुबह में जल्दी उठकर उगता हुआ सूर्य को देखें। लेकिन आजकल तो एक अलग बात हो गई, उगता सूर्य ने कोई प्रणाम नहीं करते, पर हाथम तो सूर्य ने फोटा पड़ावे छे। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सनसेट पॉइंट पर बताया जन फोटो पड़ा हाथ में। विपरीत संस्कृति होने लगी है ना। हम तो सूर्य उदय हो ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो, हम जल अर्पण करते, आयु की वृद्धि होती। दोनों से प्रजेश नगर में दक्ष महाराज ने, गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, सप्तऋषि, नारद जी, विश्वकर्मा जी आदि से सभी पधारे और सत्य की विवाह पत्रिका तैयार हुई। विवाह पत्रिका लेकर सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति देव नारद के साथ भगवान महादेव के पास गए, शिव जी को दिया और महादेव ने स्वयं ने कहा, मेरे विवाह की तैयारी कौन करेगा? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं तो लहर में रहे अपने पास बधु है तो नाराज रहे બધા છે કે દાદા છે, દાદી છે, ક્યાં નથી, માતા પિતા, ભાઈ ભાંડુ,
રહેવા માટે ઘર નથી શંકરજી પાસે, પહેરવા માટે સોના ચાંદીના આભૂષણ નથી, નહીં પિતાંબર નહીં શ્વેતાંબર. આપણે તો જેટલા કલરના કપડાં એટલા કલરના જોડા ઘરમાં પડ્યા છે. ક્યાં શું શું આપણી પાસે નથી, તમે વિચાર તો કરો. ભગવાને આપણને ઘણું આપ્યું છે, અને ઘણું આપ્યું એમાં ભગવાને આપણે એની ભક્તિ કરવાની બુદ્ધિ આપી, એનાથી મોટું શું આપ્યું છે? ભગવાનની ભક્તિ આપણને મળે છે, એ આપણી બુદ્ધિ વિકસિત કરી છે આપણે. એટલી તો આપણને ખબર છે કે ભગવાનનું ભજન કરાય. ઘણા લોકોને એ ખબર નથી કે કરાતું કે નહીં કરાતું. બહુ સમય પહેલે એક દમણની બાજુ મેં ગામ, અમારો ઉતારો, બહુ સમય પહેલાં લગભગ 2002ની આસપાસની વાત. તો જેના ઘરે ઉતારો તો મને ખબર નહીં, ત્યારે તો ભાઈ એમ કોઈ રસોઈઓ સાથે નહીં, જે કોઈ આપે એ ખાઈ લેવાનું ભગવાનનું નામ લઈને. તે હું વળી બીજે દિવસે એના વાડામાં ગયો તો વાડામાં કુકડા કાપવાનો ઢેબો. મેં પૂછ્યું, મેં કીધું તમે કુકડા ખાવ? તો કે હા રોજ ખાઈ. મરી ગયા. મેં કીધું એટલે આ કેમ મને નવથી રહેવું? આખા ઘરને બેહાડ્યું મેં કીધું જો આ ખાય ને પાપ કહેવાય, આ ન ખવાય. મને કે મારા બાપ દાદા આવું કોઈ કીધું જ નહીં અમને, કે અમને એમ કે મારા બાપ દાદા ખાય એટલે અમારે ખવાતું છે. એ જ મિનિટે લાકડાનો ઢેબો સળગાવ્યો, કુકડાના રોકડા કરાવ્યા, લોખંડનું પાંજરું ભંગારમાં આપ્યું, કુકડાને પૂરવાના ને પાંજરું આવે ભંગારમાં આપ્યું. અને ત્રીજે જ દિવસે સારામાં સારી દેશી ગાય અમે આંગણે બંધાવી. અને પછી કથા પૂરી કરીને આવ્યો, અને મહિને દોઢ મહિને ફોન આવ્યો, બાપુ અમારા ઘરે નંદી મહારાજ પધાર્યા છે. સત્સંગથી માણસના વિચારો તો બદલે, વાણી બદલે, વ્યવહાર બદલે છે. ખબર જ નથી તેને. તેથી આપણને એટલી તો ખબર છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરાય. એટલી તો આપણને ભગવાને કૃપા કરી છે કે આપણી બુદ્ધિ દીક્ષિત કરી છે કે એના ચરણોમાં આપણે સમર્પિત છે. ભગવાન મહાદેવ જે લહેરમાં રહે કોઈ નથી. सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति ने कहा जाओ सभी देवताओं को कहिए सुंदर श्रृंगार करके मेरे विवाह में पधारे. विश्व के सभी देवी देवता सब पधारे. ऋषि मुनि आए और महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा बैठे हैं. ऐसे कैसे बैठे होंगे? दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, पन्नग भूषणम वासु के कंठभूषणम. આટલા બધા સર્પો ધારણ કર્યા છે, અંગ પર ભસ્મ લગાવેલી છે. देवताओं एक दूसरे देवता बातें करने लगे, हम सब तो सुंदर श्रृंगार करके आए, लेकिन जिनका विवाह उनका कोई श्रृंगार ही नहीं है. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈના લગ્ન પ્રસંગમાં જાઓ ને તો એ ઘરની વ્યવસ્થા જોજો. નાના માણસને ઘરે જાઓ ને થોડુંક ઓછું પહેરીને જાવું, થોડાક સાદા વસ્ત્રો પહેરીને જવા. નાના માણસ હોય, મધ્યમ વર્ગનો માણસ હોય તો થોડા ઘરેણે પહેરે ઓછા કરી નાખવાના, થોડોક ઠાઠ ઓછો કરીને એના જેવું થઈને જવાનું. અને કોઈ બહુ ધનપતિ માણસ હોય ને એના કોઈ પ્રસંગોમાં જાઓ તો તમારા જેટલા સોના ચાંદીના ઘરેણા હોય એ લોકરમાં પીડ્યા હોય એ પાડોશીને પહેરીને જવાનું. હમ કિસી સે કમ નહીં, નબળું નહીં બતાવવાનું. પછી એમ सभी देवताओं ने कहा नारद जी महादेव को जरा समझाइए. नारद जी ने देव गुरु बृहस्पति को कहा और नारद जी और बृहस्पति दोनों महादेव के पास गए और बृहस्पति ने कहा महादेव मैं प्रणाम करता हूँ. देव गुरु बृहस्पति ने सुंदर शिव का स्तुति की है. महादेव को प्रणाम करके भगवान शिव जी को कहा भगवान अद्भुत लीला है आपकी, क्या वर्णन करूँ आपकी लीला का, और क्या वर्णन करूँ आपके रूप और आपके स्वरूप का कैसे मैं वर्णन कर सकता हूँ. बृहस्पति ने महादेव की बहुत सुंदर प्रशंसा की. हे महादेव, हे महादेव. नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपये शुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः. व्योमकेशाय वै नमः. आकाश में फैले इतनी बड़ी जटा, छोटी छोटी जटा नहीं, कपर्दी का क्या कहते हैं, गूथी हुई जटा. कहीं जटा का ताग नहीं मिल रहा, उसको कहते कपर्दी. जटा जुट झारी, उनको कहते कपर्दी. विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार का नेत्र, उसको कहते विरूपाक्ष. पिनाक पाणी, पिनाक नाम का धनुष रखते हैं, उसको कहते हैं पिनाक पाणी भगवान महादेव.
त्रिशूलधारी भगवान शिव। महादेव बहुत सुंदर स्तुति की बाद में कहा नारद जी ने भगवान शिव। सब लोग श्रृंगार करके पहुंच गए हैं, अब श्रृंगार करें। महादेव के यही मेरा श्रृंगार है। थोड़ा घर पोछा पड़ता है तो मोटा मोटा अजगर पहन लो। नहीं नहीं महादेव जी, अब सुंदर श्रृंगार करें। देवताओं ने अपने पास रही हुई वस्तु भगवान शिव जी को पहनने के लिए दी और भगवान शिव जी ने सुंदर श्रृंगार किया। ये प्रथम विवाह में महादेव ने सुंदर श्रृंगार किया। पीताम्बर धारण किया, उपवस्त्र, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, सुंदर मुकुट धारण किया है। भगवान शिव जी प्रसन्न मुख मुद्रा से नंदी महाराज पर सवार हुए। ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, इंद्र के अप्सराओं ने नृत्य किया और देवियों ने मंगल गीत गाए। और सुंदर गाते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद विभोर होकर सभी देव समूह, देवदूत और ऋषि मुनि सब वाद्य बजाते हुए भगवान महादेव के विवाह में प्रजेश नगर पहुंचे। नगर वासियों ने सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव जी विवाह मंडप के द्वार बधारे और वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप के मध्य में विराजमान हुए। गर्गाचार्य महाराज ने और सुंदर मंत्रों का गायन किया। बृहस्पति साथ में रहे, ब्रह्मा जी साथ में रहे, सप्त ऋषि भी साथ में रहे। एक तरफ सभी देवियां मंगल गीत गा रही, एक तरफ प्रजिष्ठ नगर वासी सभी देवियां मंगल गीत गा रही है। सुंदर दिव्य वातावरण निर्माण हुआ है। और दक्ष महाराज अपनी पुत्री सती को लेकर विवाह मंडप में प्रवेश दिया और सती ने पुष्पमाला शंकर जी को अर्पण की। महादेव ने पुष्पमाला सती जी को अर्पण किया। विराजमान हुई अंगुष्ठ की पूजा से लेकर शिव और सती का मिलन हुआ और सुंदर कन्यादान की विधि हुई। अग्निदेव को प्रज्वलित किया, अग्नि की उपस्थिति में मंगल फेरे हुए और सभी देवताओं ने शिव और सती का जय जयकार किया। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दिया। शिव और सती दोनों कैलाश के द्वार पधारे। कौन करे स्वागत? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव और सती कैलाश में उपस्थित रहे और सभी देवताओं ने परिक्रमा करके मुहुर मुहुर प्रशंसा की। बहुत आनंद आया। क्या व्यंजन, क्या भोजन, क्या जलेबी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा की। ये देवताओं के पास सीखने जैसी बात है। किसी के छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ तो प्रसंगों की प्रशंसा करो। गुजराती में कहो तो कोईना प्रसंगोने वखाणता શીખો, વખોડતા નહીં। આપણે કોઈના પ્રસંગો માં શું કરી છે, પ્રસંગોને વખોડીએ ને, અરે ભાઈ બધું ઠીક, દાળ ભાતમાં કે રામ નહોતા, દાળ ભાતમાં રામ હોય, મંદિરમાં હોય, દાળ ભાતમાં રામ नहीं। नहीं, ये आदत बहुत बुरी आदत है। दूसरों की प्रशंसा करना थोड़ा सीख जाए। खुशामद नहीं, खुशामद करना बहुत बुरी बात है। प्रशंसा, कोई तो सद्गुण है ना, हर व्यक्ति में कोई न कोई सद्गुण। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरजी बाबा कहते थे, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनमें संपूर्ण सभी सद्गुण हो। एक स्क्रू तो ढीला रहता ही है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनमें संपूर्ण दुर्गुण हो। एक तो सद्गुण मिलेगा ही आपको, उसको पकड़िए आप, उसको देखें आप। इसीलिए जीवन में ये बात को याद रखें। किसी के घर गए तो उसके बच्चों की प्रशंसा, उसके बच्चों के लिए शुभ बोलें, उसके घर के लिए शुभ बोलें। तमारा तो आम ने हमारा तो आम, तो जा तो आम। घणा एवा होय, खबर ने भाई, તમારે ઘરે આમ ને અમારે ઘરે આમ ને, તમારે તો એક જ તમારે ગાગર ને ગોળી ને હાંડો છે, અમારે તો આખી લાયન છે, તો હું લેવન તને કોને આમંત્રણ આપ્યું? અમારે એક વક્તા છે, અમારો ભાઈબંધ છે વક્તા, તે કોઈને ઘરે જાય ને એટલે સીધું શિખામણ આપવા પડે, આ કલર કરતા પેલો કલર કર્યો મારું લાગે। તો મેં એકવાર એને કાનમાં કીધું, મેં એક કામ કર્યું, તો આ ધંધો બંધ કરીને કલરનો ધંધો શરૂ કર। किसी के घर जाने से आपको एडवाइस नहीं देना, नहीं, जो है वो सुंदर बात। थोड़ी सी जीवन जीने की शैली सीख जाइए। कहीं बहनों का नाम होता है शैली, लेकिन उसके पास कोई शैली नहीं होती जीवन जीने की। सभी देवता मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर का अर्थ है एक दूसरे मिलकर। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। शिव जी के सामने नहीं, महादेव और सती के सामने नहीं। मुहुर मुहुर का अर्थ होता है एक दूसरे मिलकर एक दूसरे बोल रहे हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या बात करे यार, बहुत आनंद आया। सभी देवता अपने अपने लोक में गए। शिव और सती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया। विचरण और विहार करते करते भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार पधारे।
महात्मा जी को पता लगा कि मेरे वहाँ जगत के पिता जगत माता भवानी, और ये प्रसंग शिव महापुराण ग्रंथ में थोड़ा सा अलग है और रामचरितमानस में तुलसी का दर्शन थोड़ा सा अलग है। दोनों थोड़ा सा भेद पड़ते हैं, क्योंकि कल्प भेद से सब कुछ है। लेकिन 1 मिनट के लिए तुलसी को हम याद करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महात्मा जी वो पता लगा करे जगत के माता पिता संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। आरती उतारने लगे, कैसे स्वागत किया जाए मेहमानों का। मेहमानों की क्या महिमा थी। एक बात कहूं, आपके घर में कोई मेहमान पधारे तो समझ लेना चाहिए आपके दिन श्रेष्ठ है। हमारे गुजराती में कहे कि हारा दिवसों तो आंगणे मेहमान आवे, बाकी आंगणे कूतरू ही न आवे। आ घरनो रोटलो ने तो कूतरू पूछली पटपटावीने जतो काना घरनो न खवाय के चक हड़काया थई जाऊं। जीवन को समझने की कोशिश करें। सुंदर आदर किया, सत्कार किया, शिव और सती को सुंदर आसन दिया, और कुंभज ने कहा भगवान क्या सेवा करूं मैं आपकी। तब महादेव ने कहा और कोई सेवा नहीं, लेकिन सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुना, उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। हमारे शिव महापुराण ग्रंथ में कहा और श्रीमद् भागवत कथा में भी कहा, गोपियों ने भी कहा, सबसे दाता श्रेष्ठ कोई दाता है तो भगवान आपकी महिमा सुनाने वाला दाता है, उससे बड़ा कोई दाता नहीं। उससे बड़ा दानवीर कौन हो सकता है जो भगवान महादेव आपके बारे में कहे। गोपी गीत की पंक्ति है, राम तव कथामृतं तप्त जीवनम्। ये पंक्ति इतनी लोकप्रिय है, इतनी लोकप्रिय बनी है। भगवान आपकी कथा अमृत है, लेकिन कथा अमृत है तो भगवान महादेव का नाम तो अमृत की बारिश है। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, नारद जी शिव के नाम को कभी सामान्य मत लेना, महादेव का नाम अमृत की बारिश है, और ऐसी बारिश कभी बंद नहीं होती। जिनके मुख में महादेव का नाम निरंतर रहता है उनके लिए सभी देवताओं ने कहा उस पर हम अमृत की बारिश बरसा, लेकिन निरंतर जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। निरंतर जीवा पर ईश्वर का, शिव जी का नाम रहना चाहिए। कोई भी ओम नमः शिवाय बोले, महादेव बोले, शिव शिव बोले, जो कुछ आपको ठीक लगे। अंत तो सभी नदियां महादेव को मिलती हैं। पीछे राम राम बोले के कृष्ण कृष्ण बोले, अंत तो सब एक ही एक है। सूर्य की अगणित किरण है, कोई भी सूर्य में से निकले हुए किरण सूर्य का ही उद्गम स्थान है, सूर्य ही है, और क्या है। इसलिए हर जीव उनका ही अंश है। कुंभज ऋषि ने सुंदर कथा कही, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और जिनको कथा में सुख नहीं मिलता उनको दुनिया में कहीं सुख नहीं मिलेगा। ये सुख का उद्गम स्थान है, कहां से सुख मिलेगा। कथा इस भाव और परभाव को सार्थक करते हैं ना। कथा जीवन का थाक उतारते हैं, कथा जीवन के पापों का बोझ कम करते हैं। ये कथा सुनकर सभी तो अपना जीवन परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत इसमें से कोई न कोई जीवन परिवर्तन करेंगे। आज से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज से मैं किसी के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रखूंगा, आज मैं किसी कभी क्रोध नहीं करूंगा, कुछ न कुछ जल्दी उठकर मैं शांत होकर भगवान का स्मरण करूंगा। ऐसा बहुत सारा नियम। और भगवान महादेव ने कहा, कुंभज आपने मुझे कथा की, मुझे कुछ आपको देना चाहिए, आप कुछ मांगे। कुंभज ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा और कहा तो कुंभज ने, भगवान बस भक्ति आपकी रहे, आपके हृदय में महादेव आपके प्रति मेरा आदर रहे। रूषि भूषि हरि भगति सुहाई।
कही शंभु अधिक चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव और सती कुंभ का आश्रम छोड़कर जा रहे थे। इसमें राम जी और लक्ष्मण जी सुंदर लीला कर रहे, जाड़ जाड़ पान ने पूछ रहे थे और सुंदर रो रहे थे। एक अद्भुत लीला थी। भगवान महादेव ने देखा तो शिव जी ने मन ही मन कहा, आप जब छोटे थे तब आपने मुझे रोते हुए देखा, अब दूसरी बात देख रहा हूँ। माता कौशल्या के गोद में जो रो रहे थे, माता ने कहा अब रो दनठान। जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ। महादेव ने कहा जाइए जरा देख लीजिए, लेकिन विवेक का जतन करना। लेकिन सती गए, सीता का रूप लिया और मेरे पास पूरा संवाद है। भगवान शिव और सती का सुंदर संवाद है। और सती ने कितने प्रश्न किए और सभी प्रश्नों का निवारण भगवान श्री राम ने किया। ये कभी अवसर मिले पर ये बहुत बड़ा मैंने ये पाठ तैयार किया है कि उन पर पूरी कथा हो सकती है। बाद में सती महादेव के पास पहुंची और शिव जी ने पूछ लिया कि आपने परीक्षा कर ली? कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई। झूठ का आश्रय लिया। राम तो साक्षात सत्य है। दर्शन सत्य का किया, आचरण झूठ का किया। महादेव ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार की। सती पूछने लगी क्यों देवता जय जयकार करते हैं? महादेव मौन रहे और बहुत सारी बातें अपने हृदय में रहें, इनमें आपकी सुरक्षा है। शिव जी ने नहीं कहा आपको कुछ मन दुख हुआ है, कभी नहीं। कभी कहना नहीं, सब कुछ बोलने के लिए जरूर नहीं और सब कुछ सब लोगों को बताने के लिए भी जरूर नहीं है। जीवन को जितना सीक्रेट रखोगे इतनी आपकी सुरक्षा है। बाकी लोगों विखी नाखे, जीवा जीव न रहवा दे। ચોકલેટ કાગળમાં વીટી લ્યો ને તો તેની સુરક્ષા છે, ખોલીને બેહો એટલે સારે બધું કીડીઓ આવે ખાવા માટે, है ना। इसलिए महादेव ने नारद जी को कहा था गोप्यम गोप्यम सर्वथा। शिव जी ने कहा नारद जी गोप्यम गोप्यम, जीवन का रहस्य गोप्य रहना चाहिए, किसी को नहीं। एक बात कहूं, आज दुनियाना माणसोने सोनू चांदी हीरा मोती रोटलो रोटली भाखरी जलेबी બધું આપવું પણ કોઈને પેટ નહીં આપવાનું। પેટ किसी को नहीं। पटारो देखाड़ो पण पेट नहीं। एक बार आपका जीवन खुला कर दिया तो समझो आपका जीवन खतरे से भर जाएगा, खतरे से भर जाएगा। इसलिए बहुत सारी बातें परिवार को नहीं कहना चाहिए, आपके पास सुरक्षित हैं। और माता पिता को हमारे दिल से प्रार्थना, आपके बच्चों के हृदय में कभी वैर का बीज अंकुरित हो, ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरे के प्रति द्वेष उसके हृदय में प्रकट हो, ऐसी बात कभी नहीं। और बहुत बहनों को आदत होती है, बेटा खा जा नगर कुतरा ना आपी देश, खाए जा नगर मोटा बहन आपी देश, खाए जा नगर बहन ने आपी देश। ईर्षा तत्व उसके अंदर अंकुरित होने लगता है, तरत खाने लगता है। ऐसे ये एक बुक है गुजराती में है बानी बारखड़ी। ये बुकનું નામ છે બાની બારખડી। બારખડી આવે ને કા કી કી કુ કુ કે કઈ કઈ બારખડી, બાની બારખડી। એમાં બહેનો માટે છે કે બાળકને કેવી રીતે ઉછેર કરવો, એને તમે છૂટો પાડો બાની બારખડી, બાની બા રખડી, સમજી ગયા। જો તમે તમારા બાળકોનું ધ્યાન નહીં રાખો તો બાની બા રખડી। જેવી રીતે તમારી સાસુ રખડે છે એવી રીતે તમે રખડજો, એમ બાની બા રખડી। બહુ સુંદર છે નિંદર। જો જો આ જો બાળ ઉછેરની બારખડી છે ને, બાળ ઉછેરની બાર ગુજરાતીમાં છે। બાળકોનો કેવી રીતે ઉછેર કરો। ગાયત્રી પરિવારમાં એક રામ શર્મા આચાર્ય ગુરુદેવે સુંદર એક બુક લખી છે, ગર્ભવતી બહેનોએ કયા વાતાવરણમાં રહેવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું ન ખાવું જોઈએ। આપ ધારો તો અત્યારે પણ રામને જન્મ આપી શકો, કૃષ્ણને જન્મ આપી શકો, શિવાજીને જન્મ આપી શકો, રાણા પ્રતાપને જન્મ આપી શકો છો। ધારો તો તમે ઝાંસી કી રાણી લક્ષ્મીને જન્મ આપી શકો છો, અહલ્યાબાઈને જન્મ આપી શકો છો, ધારો તો। બાકી તો સુરપંખા તો છે જ હાજરમાં, ધારો તો તમે કરી શકો છો। और भगवान महादेव मौन रहे। शिव और सती कैलाश गए। सती ने क्षमा मांगी, महादेव ध्यानस्थ थे 87,000 साल तक।
बाबा ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। शिव और सती सुंदर कथा कर रहे थे। प्रजेश नगर में यज्ञ हुआ, सब्र को निमंत्रित किया था, भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया था। तो भी शिव और सती दोनों देख रहे थे और सती ने बहुत सारे प्रश्न किए। महादेव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी की बात सती ने नहीं मानी, क्योंकि सती ने निर्णय लिया था कि ऐसी तिरस्कार भरी हुई जिंदगी जीना उससे तो अच्छा है कि कोई न कोई अभी जीवन का अंत हो जाए। और महादेव ने अगणित गणों को सती के साथ में भेजा और सती गई प्रजेश नगर में। नगरवासी सब सती की निंदा करने लगे, सती को नहीं सुनने जैसे शब्द सुनाने लगे। मैंने बहुत बार कथा में कहा, ये समाज बड़ा विचित्र है। समाज माँ की गोद नहीं है, ये निष्ठुरता से भरा हुआ समाज है। समाज के अंदर हमारे लिए कोई फूल नहीं बिछाए हैं, कांटे और कंकर ही हैं। इसलिए सावधानी से चलिए जरा। जब दक्ष महाराज की पुत्री तपस्या करके आए थे, पूरे नगरवासी फूल बरसा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। वही सती है। आज प्रजेश नगर वही है, रास्ते भी वही है, नगर के लोग भी यही हैं, यही लोग हैं। इसलिए कब आपको फूल की माला कोई पहना और कब आपके लिए क्या बोले पता नहीं होता है। इसलिए जीवन को बड़ा समझने के लिए प्रयास करें। और एक बात कहूं, आपके कोई दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे ऐसी अपेक्षा कभी जीवन में नहीं रखनी चाहिए। और हम सब लोग की प्रशंसा कर सकते हैं, आपके लिए कोई अच्छा बोले ये कभी नहीं हो सकता। और किसी ने आपके लिए सुंदर सुंदर अच्छे बोल दिया तो समझ लेना चाहिए आपका कोई पुण्य का फल मिल रहा है। अभी कौन बोलता है। सती गई पिता के आंगन, मेहमानों के साथ बैठी हुई मां वीरणी देख लिया पुत्री को। मेहमानों के बीच खड़ी होकर सती के सामने आकर मां और बेटे दोनों गले लगाकर मिले। दुनिया का प्रेम मस्त हो सकता है, लेकिन मां तो मां है। मुखित बोलू मां तो मने मजू साचे जनानपण सांभरे, मोटपनी मजा कड़वी लागे कागड़ा। मां तो मां है। इसलिए जीवन में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मां की सेवा मिली है तो समझ लेना चाहिए आपको सब कुछ मिल गया है। मां ने कहा, बेटा तेरे पिता ने तुझे आमंत्रित नहीं किया। बुरा तो लगा लेकिन शांत रही, और कभी भी बुरा लगे तो शांत रहना ही चाहिए, इसमें आक्रोश व्यक्त नहीं करना चाहिए। सती के यज्ञ नारायण दर्शन, वहां कोई शिव जी का स्थान नहीं था। पिताजी के आगे थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और सती ने वचन दिया था कि आप जब अहंकारित हो जाएंगे तब मेरी लीला को मैं पूर्ण करूंगी। इसी समय सती ने महादेव को, चंद्रमौली को याद किया। योग अग्नि को प्रकट करके सती ने अपने देह का त्याग किया और भगवान श्री हरि को कहा, हरि जन्मों जन्म तक मुझे शिव जी का सानिध्य मिले। सती मरत हरि से नबरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती शांत हुई। भगवान शिव जी को वहां कैलाश में पता लग गया। बाबा ने जटा में थे वीरभद्र और काली को प्रकट किया और आज्ञा दी, दक्ष महाराज का अभिमान मिथ्या करें। ऐसा नहीं कहा था मृत्यु दंड दीजिए, सिर्फ अभिमान को दूर करें। और दक्ष महाराज वीरभद्र का युद्ध हुआ। भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए प्रयास किया, लेकिन युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग हुआ। और भृगु ऋषि ने शिव जी को याद किया, महादेव पधारे, और भृगु ने कहा मेरे दक्ष को जीवित करें। जीवित क्यों किया, उनके भी बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि शिव जी ने वीरभद्र को कहा